Okay, good evening, everyone. My name is Dr. Juhi Garg, and I'm founder of Dive&Pro Foundation and Dive&Pro Private Limited, which is a social impact organization. And I welcome you all to my podcast called Dive in Parables. So, we have a very special parable here, and the hero of the parable is right in front of us. So, I'm super excited to introduce you all to Mr. Krishna Gopal GV, who is a serial entrepreneur and group founder, group CEO of Access Livelihood. So I don't think that I would be doing any kind of justice if I introduce person of his stature. So I would rather request Mr. Krishna Gopal to introduce himself and talk about his journey. I'm keen from where this social impact journey started, right from childhood, and what transformed him to be into this space and changing people's life. So over to you, Mr. Krishna Gopal. Yeah, thank you, Dr. Juhi. Happy to share whatever has been my journey through this social entrepreneurship, or what we call as responsible entrepreneurship. And we will begin by answering whatever you have asked. So where did this idea get germinated from? So right at the school time, and when around 11th and 12th, most of the children are challenged to figure out what they have to do in their life. So my parents never gave in any pressure, but it was obvious that we are from middle class families. So therefore there is always a necessity that आप अपना खुद का करियर बना के रखें. तो करियर बनाना है तो पहले से ही मेरे को जब बच्चा था तब मेरा मम्मी मेरे को बताती थी अपने दादा की कहानी. तो कहानी ये ऐसी थी कि वो डॉक्टर थे, तो गांव में जब वो सर्विस करने जाते थे तो ठीक है, गांव वाले उनको पैसे भी देते थे, बट पैसे के साथ साथ उनको बहुत इज्जत और समटाइम्स दे आल्सो यूज्ड टू गिफ्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. फ्रूट्स कभी मिल जाता था, वेजिटेबल्स आता था, उनके घर से दूध आ जाता था. एक बार इफ यू आर एबल टू ट्रीट वन पेशेंट वेल, ग्रैटिट्यूड इज देयर, एंड वो ग्रैटिट्यूड के कारण बहुत कुछ पुराने समय जमाने में वो सब आता था. तो ये सब कहानियां जब मैं सुनता था तो मेरे को लगता था कि भाई लाइफ में सिर्फ it is not only about earning money. Of course all of us want to earn money and have a decent life, but उसके साथ साथ अगर लोगों का प्यार भी मिल जाए, रेस्पेक्ट भी मिल जाए, तो it is an added advantage and you can lead a very happy and satisfied life. So शुरुआत के दिन में आई वॉज थिंकिंग दैट प्रॉबेबली मेरे को अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर जब बन नहीं पाया, 95% मार्क्स आए थे, पर लेकिन फॉर अस इट लाइक 95% में भी आपको कोई मेडिकल सीट तो नहीं मिलता है. आपको आजकल तो 99% वैसा होना चाहिए तब जाके आपको मेडिकल सीट मिला. तो जब मेडिकल सीट नहीं मिला तो आई गॉट इनटू डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी. Did my BTech and subsequently I did a program called Rural Management, जो Institute of Rural Management इंडिया का one of the best management institutes है, वहाँ पे पढ़ा था. तो fortunately वहाँ पे अमूल की कहानी समझने के लिए बहुत कुछ मिला. अमूल देखा कि and अमूल is actually benefiting millions of farmers. तो वो जब देखा तो I was inspired and I felt that this is the journey that I have to take. And Dr. Verghese Kurian, जिनको हम लोग he was alive at that time and he is our chairman, तो उनको lifestyle देखता था तो he was always very comfortable. अच्छे कार में जाते थे, he had his own house and he has everything was comfortable life, but at the same time thousands of farmers and millions of farmers have benefited out of this entire process. तो ये जो देखा तो I was immediately inspired by it, and then 20 years has passed. So we have continued to work for the farmers, weavers, rural women, and help them to set up their own enterprises. And I can very much happily say that I have never compromised on my lifestyle. I have a very good car, I get decent income, I sent to my son to a good school in Hyderabad. ऐसा भी कोई compromise school, decent education मिलता है. तो my lifestyle is good, but at the same time I also have the satisfaction that I have attracted 70,000 or 80,000 women by this time.
एंड अगले 20 साल में हो सकता है कि माई वर्क विल बी एबल टू इम्पैक्ट more than a million women. So that is a good feeling to have. So that is why I say that if any youngster is interested in this kind of a career, then we can guide them. That where you are doing self-help and you are also helping others. एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड सर। मैम बल्कि इनफैक्ट मेरे माइंड में ये था आपसे पूछने के लिए, इमीडिएटली नहीं, बट यू गेव मी अ क्लू टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि एक जनरल जो मिथ है अमंगस्ट यूथ, अमंगस्ट आम जनता, कि भैया एनजीओ का काम मतलब नो पैसा और पूरी जिंदगी स्ट्रगल। ऐसा नहीं है। एंड ऐसा क्यों नहीं है, ये आपसे बड़ी केस स्टडी नहीं हो सकती। आपने खुद ही बताया कि आई लिव अ डिसेंट लाइफस्टाइल, आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, माय सन इज स्टडीइंग इन अ गुड स्कूल। सो ये जो सीक्रेट सॉस है वो क्या है, और कैसे लोग सोशल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन बना सकते हैं, वो कैसे हो सकता है और आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? पहले I think we have to address the fact that myth that NGO is not an established sector, not for profits है या फिर sectors which are service oriented. Let's say for example, if there is an enterprise which is working on ecotourism, these are responsible enterprises. Or if you're working in solar tech, or you're working on alternate fuel, any of these green technology based sectors, these are all jobs which are responsible enterprises, whether it is not for profit which is servicing communities or whether you are servicing the planet. ये दोनों sectors में it is not like the traditional view that you don't get paid. All these sectors now contribute substantially large amount of employment. पूरे देश में तकरीबन around 15 to 20% people are employed. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट 6-7% निकाल देंगे तो 14-15% ऑफ द पीपल आर कंप्लीटली एम्प्लॉयड इन प्राइवेट सेक्टर एंड वो अलग अलग जॉब्स में रहते हैं. सो सिमिलरली a large part of that is today being contributed by the responsible enterprises and not for profits. और यहाँ पे भी सैलरीज की कोई कमी नहीं है. इनफैक्ट कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में और फॉर एग्जांपल अगर आप एग्री इनपुट्स में रहते हैं या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स से बेहतर पेमेंट्स नॉट फॉर प्रॉफिट्स में हो रहा है और रेस्पॉन्सिबल एंटरप्राइजेस में सैलरीज मिल रहा है इन लोगों को. तो ये जो इमेज है वो पुरानी इमेज है. मे बी वी आर स्टिल लॉक्ड इन 80s. Nowadays nobody actually says that you cannot do service. And पहले सर्विस मतलब वॉलंटरी सर्विस होता था. वॉलंटरी सर्विस मतलब यू डोंट अर्न एनीथिंग फॉर योरसेल्फ. आप सब कुछ त्याग कर दिया, सन्यास का जीवन ले लिया और फिर आपने सर्विस किया. नाउ नोबडी एक्सपेक्ट्स लाइक दैट. यू कैन लीड अ डिसेंट लाइफ एंड यू कैन सर्विस अदर्स. द ओनली थिंग इज यू कांट गो बिहाइंड ग्रीड. कुछ लोग होते हैं, नॉट एवरीबडी, बट देयर विल बी सम 3% or 4%. कुछ लोग होते हैं कि वो लोग they are not happy with one car, they are not happy with one house. I want 4 houses, I want एकड़ का जमीन, मेरे को करोड़ों का सैलरीज होना चाहिए. अगर वैसा है तो जरूर मैं बोलूंगा कि that is responsible enterprises and not for profits cannot give you that. You have to be an entrepreneur. You have to really get into sectors which can pay you very hefty sums of money, billions of dollars. सॉफ्टवेयर सेक्टर में जाइए, अगर आप सच में CEO बनते हैं सॉफ्टवेयर सेक्टर में तो you will get that kind of pay. करोड़ों में सैलरीज मिल सकता है. बट इफ यू वांट अ डिसेंट पे एंड यू वांट टू बी इन द टॉप 7% और 10% इन द कंट्री, एनजीओ सेक्टर आपको उतना सैलरी तो दे सकता है और उतना आगे बढ़ सकता है. वाओ, एग्जैक्टली. आई मीन ये जो मिथ है ना, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है और आप और हम जैसे लोग ही कर सकते हैं. इनफैक्ट जितना मैंने लंबा दौर गुजारा हायर एजुकेशन में और समझा, अभी मैं सोशल एंटरप्राइज खुद रन कर रही हूँ. एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज़ अ सोशल इम्पैक्ट, एक एनजीओ है विच इज़ अ ट्रस्ट, एंड दोनों के अपने पर्पसेस हैं. एक मैं हेल्थ केयर में काम बहुत मैसिवली कर रही हूँ. ऑल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन फोकसिंग ऑन वुमेन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड हेल्थ. तो ये 4 हमारे एरियाज हैं जिस पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं और यही हम समझाने की कोशिश करते हैं महिलाओं को कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट स्ट्रगल, इट इज अबाउट एम्पावरिंग अदर्स एंड गेटिंग एम्पावर्ड yourself first. खुद एम्पावर होके आप तभी किसी को एम्पावर कर देते हैं. मैस्लोज हायरार्की, who doesn't understand that. आपकी वेबसाइट में देख रही थी और मैं इसमें एक छोटा सा बात बोलना चाहता हूँ कि
ये भी नहीं कहूंगा कि देर इज नो स्ट्रगल एट ऑल, देर इज स्ट्रगल. And like everybody says that how did life originate? Life originated after churning, right? So life का मतलब ही है that it is after churning that you will get life. तो अमृत will हमको अगर मिलना है तो आपको बहुत अच्छे से churning होना है. तो I will not say that there is no struggle, but you will. It doesn't mean that वो day to day का struggle नहीं है कि आपको खाना पीना नहीं मिलेगा, वैसा struggle नहीं है. Struggle तो रहेगा, आपको contracts लेके आना है, आप प्रोजेक्ट्स करेंगे तो कोई गाली देता है, कोई ढंग से काम नहीं होता है, कोई एम्प्लॉय आपके अंडर मिसअप्रोप्रिएट करेगा, कोई फ्रॉड चलता है, ये सब तो रहेगा, ये स्ट्रगल्स रहेगा. एंड यू हैव टू फेस ऑल दीज स्ट्रगल्स इन एनी जॉब और एनी एंटरप्राइज. So I will not say that struggle is eliminated. Struggle will be there, but it will not be for your own personal life. आप अपना काम लाइफ तो चला सकते हैं, स्ट्रगल्स रहेगा और खुशी भी रहेगी, क्योंकि when you are struggling, जितना आप स्ट्रगल करते हो उतना आपको खुशी भी मिलती है. That's how the entire principle. Like it's like आप दूध को भी लेंगे, दूध को चर्न करते हैं तो मलाई तब ज्यादा मिलता है जब आपको अच्छी तरह से चर्न करते हो. तो आपको मलाई चाहिए लाइफ में, तो यू हैव टू गो थ्रू सम चर्निंग. चर्निंग तो रहेगा. बिल्कुल सही बात है. और लाइफ इज ऑल अबाउट मंथन ओनली. मरने के बाद तो जलने का भी दर्द नहीं होता. जब तक जिंदगी है आपको स्ट्रगल करना है, और स्ट्रगल ही आपको बेटर बनाता है. सोने को जितना ठोका पीटा जाएगा, जितना जलाया जाएगा, तपाया जाएगा, उतना खूबसूरत आभूषण बनेगा. तो ये तो लाइफ है, और 1,00,000 नहीं अरबों एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं. तो इसको तो बाय डिफॉल्ट है, लाइफ मीन्स अ स्ट्रगल एंड यू हैव टू कंट्रीब्यूट एंड कीप बेटरिंग योरसेल्फ. तो कुछ लोग बोलते भी हैं कि आप स्ट्रगल को जितने जल्दी ले सकते हो उतना ले लेना चाहिए, तब जाके आपका बाद में सुखी लाइफ होता है. अगर आप पोस्टपोन करते जाओगे तो बाद में और ज्यादा तकलीफ मिलता है. उसके बारे में बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. इनफैक्ट मैं आपकी वेबसाइट जब देख, तो आप जो कह रहे हैं मैं उसको बड़े खूबसूरती से कोरिलेट कर पा रही हूँ, बिन पा रही हूँ. तो 2 इनिशिएटिव्स मुझे बड़े इंटरेस्टिंग दिखाई पड़े. वन इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, विच इज अ 2 years पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, एंड सेकेंड इज री इमेजिनिंग रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइजेस. तो एक मेरे संज्ञान में जो है, टू माई नॉलेज, वन इज फॉर स्पेसिफिकली विमेन एंड अदर वन इज अ फेलोशिप प्रोग्राम for youngsters who graduate, postgraduate and would like to pursue their career in social development field. So ये इसका objective vision क्या है आपका, और how can people actually be part of it? Yeah, so basically, so as I said, as an entrepreneur हम लोग जो भी problems, entrepreneur का definition ये होता है कि they are sensitive to problems. सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहा है उसके दे आर सेंसिटिव एंड दे हैव अ सॉल्यूशन टू सॉल्व द सोसाइटीज प्रॉब्लम. दैट इज व्हाट एन एंटरप्रेन्योर डज. कि लेट्स से फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स आया, स्मार्टफोन्स कैसे इनोवेट हुआ है. देयर वाज अ प्रॉब्लम और इन सोसाइटी देयर वाज अ नीड टू कम्युनिकेट, एंड नीड टू कम्युनिकेट ऑन टाइम प्लेसेस एंड अ विजिबल वे, और इजीली हो सकता है. तो उस प्रॉब्लम को उठा के वो लोगों ने स्मार्टफोन की तरह उसको कन्वर्ट किया और सोल्यूशन निकला है. So every entrepreneur will only grow when they are able to identify the problems that the humanity is facing or the planet is facing. उस प्रॉब्लम्स को हम अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करेंगे तो सोल्यूशन मिल सकता है. तो यहाँ जो आपने 2 प्रोग्राम्स बोला है, फेलोशिप प्रोग्राम है या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, दीज आर बोथ फॉर यंग ग्रेजुएट्स. और मैं इसको फिर से अपने आप से रिलेट करूंगा. मेरे घर में क्या है कि मेरे बड़े भाई हैं, और एंड ही इज वेल क्वालिफाइड, हाईली इंटेलेक्चुअल, बहुत ही हार्डवर्किंग बंदे थे. अभी दिखाते हैं कि कोटा में ट्रेनिंग होता है IITs के लिए, और सब जगह लोग स्ट्रेस में रहते हैं, कहीं कहीं पे बच्चों का सुइसाइड भी हो जाता है. बट मेरे भाई को मैंने देखा है, ही ऑलवेज यूज्ड टू स्टडी वेरी वेल. कोई कोचिंग में नहीं जाते थे, ही नेवर यूज्ड टू गो टू एनी कोचिंग, बट ही गॉट इनटू IIT, राइट. सो IIT में गए, और तो ऑटोमेटिकली सेकंड ब्रदर मैं हूँ, तो मेरे पर भी प्रेशर था कि भाई देखो, भाई तो बड़ा भाई तो कर लिया है, अब तुम क्या कर रहे हो. बट मेरा माइंडसेट जो था पहले से ये था कि मैं 90-95 मार्क्स तो लेके आ सकता था, बट जो 100 मार्क्स के लिए जो एफर्ट चाहिए और जिसमें क्रैक होने का, उतना एफर्ट मैं नहीं डाल पाता था.
मतलब मेरे को लगता था कि बिना मतलब का है कि भाई उतना ज्यादा मैं एफर्ट डालूं और 100 मार्क लेके 90-95 से तो खुश हूँ, वाई शुड आई बी एक्चुअली पुटिंग दैट एक्स्ट्रा माइल ऑफ एफर्ट। तो ऑब्वियसली उसके कारण मेरे को मेडिकल सीट नहीं मिलेगी। तो और मेरे ख्याल से 90% बच्चे ऐसे भी होंगे, ऐसे ही होंगे, मेरे जैसे ही होंगे। मेरे भाई जैसे बच्चे बहुत कम होंगे जो अच्छी तरह से पढ़ लिख के हार्ड वर्क करके अपने इंटेलेक्ट को यूज करके सही समय पे आईआईटी में क्रॉस हो रहे हैं, वो बहुत कम लोग हैं। 2.5% आउटलायर। 2.5% और वो आउटलायर्स है, सही बात बोला है। तो मेरे जैसे बच्चे जो हैं, और मैंने पहले, मेरे को लोग, मेरे टीचर्स भी मेरे को बोलते थे यार तुम शार्प हो, इंटेलिजेंट हो, सब चीजें तुमको समझ में आता है, बट तुम एग्जाम में ये एडिशनल एफर्ट क्यों नहीं डाल रहे, लिखते क्यों नहीं हो और उसको अच्छी तरह से क्यों नहीं करते हो और इतने नंबर में। मैं बोलता था, उनको भी बोलता था और कभी कभी अपने आप को भी बोलता था कि भाई जिंदगी में मेरे को 100 मार्क्स लेके आना ये मेरा मकसद नहीं है। आई हैव टू सर्वाइव, आई हैव टू हैव अ डिसेंट लाइफ, आई शुड हैव this one, I should be able to be happy, and I'm not just only about working for money or for this one। तो मेरे को हैप्पी लाइफ लीड करना है, उसके लिए मेरे को कोशिश करना है। तो देन आई फील दैट कि इतना ज्यादा हार्ड वर्क करके मेरे को उसके अंदर फिर ये ऐसा नहीं है। इफ आई एम इंटेलिजेंट, इफ आई अंडरस्टैंड द थियरी एंड इफ आई एम एबल टू लुक एट इट, मेरा लाइफ चल जाएगा। तो ऐसे लोगों को, एंड आई ऑलवेज यूज टू हेट दिस क्लासरूम बेस्ड रीडिंग। क्लास में बैठो और लेक्चर सुनो, उसका लिखो और उसको मगअप करो, फिर एग्जाम में जाके पढ़ के उसको लिखना है। और आप इंडिया एक जैसे डेवलपिंग कंट्री है, तो उसमें भी देखे हुए तो हार्डली 10% बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मौका मिलता है। 90% बच्चे जो है ग्रेजुएट्स के बाद रुक जाते हैं, उनका इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं रहता है, या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर उनकी जो स्किल्स है, जो स्कूल लेवल से उनकी ट्रेनिंग जो मिलती है, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर देम टू गेट इनटू पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये सब चीजें हमने ध्यान दिया और मैंने बोला कि मेरे जैसे बच्चों के लिए भी कुछ हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स होना चाहिए। मतलब वो एक्शन में ठीक है, भले वो कॉन्फिडेंस उनकी कम रहेगी क्योंकि मे बी दे डोंट नो इंग्लिश, मे बी दे डोंट नो दे डोंट कांट पुट फुल एफेक्ट एंड अंडरस्टैंड द थियरी। क्लासरूम में बैठ के वो लिख नहीं सकते, बट प्रैक्टिकल वर्क में वो ठीक ठाक है। So then we decided that when 90% of the students are actually in this kind of a mode, why do we create programs which can only take care of 2.5% of the people? आप आजकल की इंजीनियरिंग देखोगे, मेडिसिन देखोगे, हर जगह पे वो 2.5% बच्चों के लिए वो डिजाइन किया जाता है। आपको क्लासरूम में बैठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, उसको मगअप करना पड़ता है, फिर एग्जाम में लिखना पड़ता है। भले आपको सर्टिफिकेट मिलने के बाद यू डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल स्किल्स, नोबडी इज बॉदर्ड, बट यू हैव टू मग अप एंड राइट एग्जाम्स। So we understood that most of the children cannot do that, but yet they are intelligent, they are smart. So this program is targeted to those people who are vexed with classroom based learning, but who think that they have practical knowledge and who want to build a career based on practical understanding and move forward. And मेरे ख्याल से 90% लोग वैसे ही आगे बढ़ते हैं, they don't go by the IIT and this one। तो उनके लिए एक पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम डिजाइन करने का मेरा बहुत मन था, और दोनों ये फेलोशिप प्रोग्राम या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप उसी के हिसाब से इसके डिजाइन किया गया है। बच्चे जो ठीक है एक्सेलेंट में स्टडीज में नहीं है, बट लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उनका अच्छा है, तो उनको एक मार्ग दिखा सकते हैं। एंड एज ए सेट, इसमें वो ये भी कोशिश है कि आप खुद भी अच्छी तरह से जियो और दूसरों को भी मदद करो आगे बढ़ने के लिए। तो जिनको ये भावना होती है, दोज हु वांट टू सर्व एट द सेम टाइम सर्व देमसेल्व्स एज वेल एज सर्व अदर्स, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा बढ़िया प्रोग्राम है। प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर हम लोग सिखाएंगे, और बाहर जब जाएंगे, फिर नारायण मूर्ति जी ने बोला एक बार कि देयर आर 90% ऑफ द इंजीनियर्स एक पूरा चिट्ठी ढंग से नहीं लिख पाते हैं व्हेन दे कम टू दिस वन, दैट्स व्हाई दे हैव टू स्टार्ट देयर ओन एकेडमी। तो वो कंप्लेंट तो नहीं रहेगा। यू गो थ्रू दिस प्रोग्राम, एटलीस्ट यू विल बी प्रैक्टिकली वेरी साउंड एंड इंडस्ट्री विल बी वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट यू एंड गिव यू एम्प्लॉयमेंट। परफेक्ट। तो सपोजिंगली कृष्णा जी, अगर मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ लेट्स से प्रोग्राम, ठीक है, आप तो डॉक्टर, तो क्या होगा, उससे क्या आपने थियरेटिकल नॉलेज तो बहुत ग्रहण कर लिया, और वो भी डॉक्टरेट भी ग्रहण कर लिया है। तो ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। ये जो वही है बच्चे जो
और जो बच्चे जो है 80% मार्क्स लेके आते हैं मतलब या बिल्कुल, अरे तो 90 सपोजिंगली अगर मैं जॉइन, आई गॉट योर पॉइंट। मैं उन बच्चों के बिहाफ पे ही पूछ रही हूँ, सपोजिंगली आई हैव टू जॉइन दिस प्रोग्राम, so what should be the eligibility criteria? And I don't want to spend, let's say, two years of my life. मेरे पास लगभग 1 साल है और मुझे 1 साल यूटिलाइज करना है, लर्न भी बहुत करना है, और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ लर्निंग नहीं, कुछ मुझे इससे स्टाइपेंड या कुछ अर्निंग भी हो जाए। सो क्या ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं आपके पास? या सो तो फेलोशिप प्रोग्राम जो हमने स्पेसिफिकली 13 मंथ्स का डिजाइन किया है, और दो साल की प्रोग्राम में भी स्टाइपेंड है, बट लेकिन मैं ये 13 मंथ्स की फेलोशिप प्रोग्राम है। एंड एज आई मेंशन, बहुत सारे ग्रेजुएट्स है, दे कैन नॉट अफोर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन। उनको उनकी घर की सिचुएशन ऐसा रहता है कि उनको तुरंत जॉब लेना पड़ता है, इवन इफ दे वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशन। तो ऐसे बच्चे जो स्मार्ट है बट लेकिन घर की हालत उनका ठीक नहीं है, तो उनको पहले नौकरी चाहिए। तो ये एक ब्रिज प्रोग्राम है। दिस फेलोशिप इज ए ब्रिज प्रोग्राम, जहाँ पे 13 मंथ्स की प्रोग्राम है। 1 महीने आपको पढ़ाई लिखाई होगा, क्लासरूम में बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और उसी स्किल्स को अगले 12 महीने आप एक मेंटर के साथ रह के एक नॉट फॉर प्रॉफिट में, एक रेस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज, ग्रीन एंटरप्राइजेस में आप काम करोगे। उनकी एडवाइस और जॉब्स कैसे रहती है, गाइडेंस मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगा। वो सब करने के बाद आपको क्या है कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहेगा, यू विल हैव प्रैक्टिकल नॉलेज एंड यू विल आल्सो हैव थियोरेटिकल नॉलेज ऑन योर साइड। सो यू वुड हैव डन 16 कोर्सेज, अच्छे फैकल्टी से 16 कोर्सेज भी कर चुके होंगे। आपको तकरीबन 15-20 एंटरप्रेन्योर्स के साथ इंटरेक्शन भी होगा ड्यूरिंग दी सेशंस। तो अलग अलग सिचुएशंस के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू उनको क्लासरूम लर्निंग भी होगा, और 12 महीने सिंस वो फील्ड में रहेंगे तो उनको प्रैक्टिकल मेंटरशिप भी मिलेगा। अलग अलग फंक्शंस में मार्केटिंग करना कैसा है, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, और एक एंटरप्राइज मैनेजमेंट में जो भी जरूरत है, एक टीम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सब का भी एक अनुभव और एक्सपीरियंस होगा। जब ये 13 महीना कंप्लीट हो जाएगा, आप फिर से, बिकॉज आपके पास 3-4 लाख रुपए का आय भी हो जाएगा, उसके अंदर कुछ बचत करेंगे तो आपके पास पैसा रह सकता है, और आप एक्सपीरियंस भी रहेगा, आपके पास पैसा भी रहेंगे, एक्सपीरियंस रहेगी। तो आप उसके बाद जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जॉब ले सकते हैं, या फिर हायर एजुकेशन करना है तो हायर एजुकेशन प्रॉपर क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। और जो हायर एजुकेशन में जाते हैं, they will get a specific advantage that because they have seen practical experience, वो हायर एजुकेशन का जो कोर्सेज है उसको रिलेट भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं मैनेजमेंट तुरंत ग्रेजुएशन करने के बाद मैं खुद मैनेजमेंट किया। मेरी अंडरस्टैंडिंग कंपेयर करेंगे तो मेरे बैचमेट्स कुछ लोग थे जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस 4 साल 3 साल काम करके फिर आए थे, उनकी एक्सपीरियंस और वो जिस तरह से वो क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते थे और कैसे वो उसको ग्रास्प कर सकते हैं, उनका तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा था कंपेयर टू मी। उसके बाद मेरा रियलाइजेशन हुआ कि एक्चुअली इवन मैनेजमेंट करने से पहले अगर 1-2 साल अगर काम कर लेते तो हमको अच्छी तरह से अच्छे हुए। तो ये एक मौका है, फेलोशिप एक ब्रिज कोर्स है जिसके थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज वेल एज थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों मिल सकता है, और आगे जाके उसको बहुत अच्छी तरह से फायदा हो सकता है कि इधर वो एजुकेशन में जा सकता है या फिर जॉब कंटिन्यू कर सकता है। और जॉब का ये बात मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे हमारे फेलोज जो 10-15 हजार कमाने के लिए जॉब भी स्ट्रगल करते थे, हमारी फेलोशिप के बाद ज्यादातर लोगों को 25 से 30 हजार या 40 हजार का नौकरी मिल रहा है। तो इंडस्ट्री इज ऑल्सो वैल्यूइंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट इज एक्चुअली गेन पीपल आर। एंड सपोजिंगली कोई स्टूडेंट ये फील करता है कि उसको हायर एजुकेशन नहीं करना है, उसको जॉब नहीं करना है, बट दे वुड लाइक टू ओपन देयर ओन एंटरप्राइज, अ सोशल एंटरप्राइज और समथिंग लाइक दैट, सो दैट एक्सपोजर इज आल्सो गिवन इन दीस प्रोग्राम्स। थोड़ा बहुत रहेगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोग्राम है, तो कुछ ही आपको थियरी का फुटिंग मिलेगा और ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन मिलेगा। बट अगर वो 2 ईयर प्रोग्राम में एनरोल करते हैं तो उनको फुल फ्लेज एंटरप्राइज इंक्यूबेशन का पॉसिबिलिटी है। आजकल तो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ज्यादा एम्फोसिस कर रहा है। देयर आर सेवरल इंक्यूबेटर्स, वी आर नॉट द ओनली इंक्यूबेटर। इंडिया में अभी तकरीबन 600-700 इंक्यूबेटर्स हैं। तो and we will be able to advise and we'll be able to help the person who wants to start their own enterprise to get enrolled with one of these incubators and be part of their cohorts to get the enterprise incubation done. So
बोथ दी अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट चाहिए तो प्लेसमेंट, या फिर इंक्यूबेटर के अंदर घुस के आप इंक्यूबेशन लेके जाना चाहते हैं, दोनों का सपोर्ट आपको मिल सकता है, एंड वी विल बी एबल टू गाइड फर्दर. That is after 13-month program. Sounds good. So, कृष्ण जी, सपोजिंगली अभी जैसे हमारे जब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो हमें समझ में आया कि टाइम हैज रियली चेंज्ड. अब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वैसी नहीं रही कि स्ट्रगल करो उस तरीके से और कमाई अपनी नहीं है, ऑल दैट. सो अभी का जो स्टेटस है सोशल डेवलपमेंट सेक्टर का हिंदुस्तान में और आगे, हाउ डू यू एनविजन द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर इन इंडिया in next, let's say 20 years of time or 10 years of time, 20 भी नहीं, 10 years of time. क्योंकि आज जो स्टूडेंट, जो फेलो हमें ज्वाइन करेगा, वो अपना करियर कम से कम सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में कम से कम 10 साल तो देने की सोचेगा ही सोचेगा. ठीक है, तो 10 साल में हमारा हिंदुस्तान कैसे होने वाला है इस सेक्टर में, और आज की डेट में ये इतना अपॉर्चुनिटीज क्यों है? सो हाउ डू यू वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस? Yeah, so I will first like to define what is responsible entrepreneurship. जी. Responsible entrepreneurship का मतलब ये है, it is that an enterprise which is conscious about कि भाई मैं the planet को या फिर जो environment है या earth है उसको खराब नहीं करूँगा because I am interested in doing business or earning my own money. दूसरा ये है कि जो communities हमारे आज भी देश में 70% लोग जो है वो तकरीबन 1 लाख या 1.5 लाख सालाना आय से कम कमाते हैं. बिल्कुल. तो इन दोनों चीज जो है, प्लैनेट भी अफेक्ट होता है, पीपल भी अफेक्ट होते हैं. अगर इन दोनों को चीज को हम लोग ध्यान देते हुए, सेंसिटिव होते हुए, इनकी भी थोड़ा मदद भी करते हुए अगर हमारी बिजनेस कर सकते हैं तो हमारी बिजनेस को हम रेस्पॉन्सिबल बिजनेस बोल सकते हैं. इसके अलावा आम तरीके पे आप देखेंगे कि हम सब लोग बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि डे टू डे बेसिस में हम लोग टूथपेस्ट खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, चिप्स खरीदते हैं, कभी कभी खाने बाहर करने जाते हैं, कहीं पे ये जाते हैं, वेकेशन में जाते हैं तो कोई होटल्स में चले जाते हैं. हर जगह पे हम लोग अलग अलग लोगों को देखते रहते हैं, तो हमको मालूम पड़ता है कि कौन बिजनेसमैन अच्छा है और कौन बिजनेसमैन अच्छा नहीं है. आप देखेंगे सोसाइटी में एवरीबडी विल एक रेस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन रहेगा जो अपना रेट्स क्लियर कट बता के आपको सामने से बताएगा. अगर आपको सर्विस बोल रहा है कि 10 चीजें देगा, वो सर्विसेज अगर आपको कमिट करता है और उसको सर्विस कर सकता है और उससे थोड़ा आगे एक और कदम डाल के कस्टमर को पूरा सेटिस्फैक्शन देने के लिए और कुछ करता है, तो ऑब्वियसली कोई भी उसको सर्विस रिसीव करने वाला जो भी प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो दे आर वेरी हैप्पी. तो जनरली ये बोलते हैं कि कस्टमर का वैल्यू जो जनरेट करता है बिजनेस में, जो जनरेट कर पा रहा है, दोज हु आर एबल टू डिलाइट द कस्टमर, that's what they call in management. If you are able to create a customer delight, then your business is going to sustain for longer. So either you have to be sensitive to the planet, or you have to be sensitive to the people, employees whom you are employing, or you have to be really doing a customer delight, ताकि आपके customers खुश रहे. ये चीज अगर जब automatically when you do these things, you will see that your business is going to run for longer time. आज के नाम पे फॉर एग्जाम्पल टाटास का बड़ा नाम है. क्यों है? क्योंकि वो 120 साल 25 साल तक वो बिजनेस कर रहे हैं, बट बिजनेस के साथ साथ उनका जो 50% प्रॉफिट्स होता है वो फिर कम्युनिटी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और कैंसर हॉस्पिटल्स बनाते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, जिसके अंदर वो लोग जा सकते हैं. तो जब भी आप ऐसे बिजनेस करते हो जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल हो एंड यू इंटेंड टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल, प्लैनेट एज वेल एज इन बिजनेस थ्रू द कस्टमर्स, ऑन द कस्टमर्स, उसको हम रेस्पॉन्सिबल बिजनेस. तो इंटरनेशनल रिसर्च क्लियरली बोल रहा है कि आगे जाके वही बिजनेस टिकने वाले हैं, अगले 10 साल में वही बिजनेस टिकने वाले जो ये चीजें को समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं. समझना एक बात होती है, बट प्रैक्टिस करना है अपने बिजनेस में. तो हमारी जो फेलोशिप है प्योरली वो रेस्पॉन्सिबल बिजनेसेस को ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है. ऐसे चुनिंदे एंटरप्राइजेस को आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे वो लोग ये कॉन्शियस हैं, जो फेयर ट्रेड प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस करते हैं, जो अपने एम्प्लॉयज का देखरेख अच्छा तरह करते हैं, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, जिनकी पॉजिटिव इम्पैक्ट होती है, जो प्लैनेट के अंदर चेंज लेके आने सकते हैं और इम्पैक्ट क्रिएट, पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं. ऐसे
एंटरप्राइजेस को हम लोग चुनते हैं और वहीं पे आपको डिप्यूट करते हैं एम्प्लॉय इंटर्नशिप के लिए या फेलोशिप के प्रोग्राम के तहत। सो स्लोली वी अंडरस्टैंड दैट व्हेन दे आर इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे ये प्रैक्टिसेस है और कल्चर है, तो उनको भी वो समझ में आएगा। और मेरा ये फर्म बिलीफ है और इंटरनेशनल रिसर्च भी क्लियरली बोल रहा है कि 10 साल में ऐसे ही इंटरप्राइज टिकेंगे जो इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। बाकी जो सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड रहते हैं, जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि भाई ठीक है मैं माइनिंग कर रहा हूँ बट मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितने पेड़ गिर जा रहे हैं और फॉरेस्ट खराब हो जा रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को नहीं देखना है। और जिनको लगता है कि मैं फूड बिजनेस करता हूँ, पेस्टिसाइड्स बढ़ फूड के मैं उसको डालूंगा, या फिर जो दूध में यूरिया मिला के दे सकते हैं, ऐसे जो भी शॉर्टकट्स करने वाले जो भी जितने भी बिजनेसमैन है वो सब तो गायब होने वाला है। कभी ना कभी उनका जो रास्ता जो है वो गलत रास्ता है, जिस तरीके से वो पैसे बना रहे हैं वो गलत तरीका है, और बाहर निकलेगा और दुनिया के बाहर सामने आएगा और वो सब बिजनेसेस टूट जाएंगे। Absolutely. And I think इसमें एक planet has to be purpose driven, and जो आपने बड़े rightly research oriented way में बताया कि भाई अगले 10-20 साल तक रिसर्चेस यही बताती हैं कि वही सस्टेन कर सकता है जो सस्टेनेबिलिटी पे काम करे, राइट। सो एंड आई फील सस्टेनेबिलिटी पे आप साइलो में रह के काम नहीं कर सकते विदाउट एनी कोलैबोरेशन, without any partnerships. So how do you see that partnerships are coming along with you or your way, and how people should focus on collaborating their synergies and muscle power together to a greater cause? तो ये कैसे संभव हो पाता है? So actually the challenge is that we should know what we want in life. The moment we know what we want to live and what we want to do, for example, the more I keep speaking that मैं अपने लाइफ टाइम में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबको ये करना चाहिए, मेरे अपने लाइफ टाइम में मैंने सोचा है कि 10 लाख महिलाओं को कुछ अपने आप स्वशक्त होने के लिए, whether they want to be self-reliant, self-empowered and they want to be self-reliant, financially, economically वो stable रहे, that kind of a life they should be able to live. That is what is my purpose in life. So if your purpose is very clear and you frequently start communicating that, तो जितना हमको स्ट्रगल होता है उसके साथ साथ हमको सपोर्ट भी मिलता है, बिल्कुल, क्योंकि सामने वाला भी इंटेलिजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, लेट्स से आप एक बार्बर के पास जाते हो, हेयर कट सैलून में जाते हो, उसने अपना नाम बहुत अच्छी तरह से चमकीला रूप से अच्छा रखा है, उसने लाइट्स भी अच्छा रखा है, इक्विपमेंट नए रखे हैं, सब कुछ रखा है, बट लेकिन वो अगर उसके काटने का स्किल जो है वो बहुत कम है, क्या आप फिर वापस जाएंगे वहां पे? मैडम आप जाएंगे फिर वो पार्लर में? नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली नहीं जाएंगे। तो दुनिया को क्या है कि जो चमकता हुआ चीजें हैं, जो ग्लैमर हम दिखाते हैं, वो काफी जल्दी उसका जो पर्दा जो है वो हट जाता है। अल्टीमेटली आप अपना पर्पस और जेन्युइनिटी और उसके ऊपर से अगर आप काम करोगे, सामने वाला whether it is a customer, whether it is a partner donor, whether it is a CSR organization, whether it is a government, इन सबको भी they have intelligence, वो they figure out। एक बार आपसे फूल हो सकते हैं बट दोबारा नहीं होंगे। they will blacklist you, they will be able to tell everybody else that भाई मार्केट में आपके बारे में खराब इमेज फैल जाता है, यार मैं तो वहां पे जाके पार्लर में गया था, उसने ढंग से नहीं किया है बोल के वो तुरंत वर्ड ऑफ माउथ में स्प्रेड हो जाता है आपके पास। तो आप कोलैबोरेशन करने से पहले आपको आपका पर्पस क्लैरिटी होना चाहिए, दूसरा आप जेन्युइन काम करना चाहिए। अगर ये दो चीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कोलैबोरेशंस बहुत सारे मौके हैं। एक्चुअली मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूं क्योंकि गवर्नमेंट हैज रियली एनकरेज्ड। आज गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रहा है कि लोगों को, इवन प्राइम मिनिस्टर भी यही बोलते हैं कि यू डोंट बी अ जॉब सीकर, यू हैव टू बी अ जॉब गिवर। तो जॉब क्रिएटर रहना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारे मदद मिल रहे हैं और मेरे को भी, इवन दो इट इज अ स्ट्रगल, मेरे को भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी मदद दिया है। तो नीति आयोग ने हमको एस्टैब्लिश इंक्यूबेशन सेंटर बोल के रिकॉग्निशन दिया है। इंडिया में सिर्फ 12 इंक्यूबेटर्स हैं जो, और हमारा भी एक इंक्यूबेटर है, और उसके साथ साथ उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंट 7.5 करोड़ भी हमको दिया ये इंक्यूबेटर को चलाने के लिए। सिमिलरली
नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने हमको पार्टनर की तरह रिकग्निशन दिया है, क्योंकि एज ए सेड हमारी पर्पस वेरी सीधा साधा है और हम हानेस्ट काम करते हैं ग्राउंड में। जब भी वो ऑडिट करेंगे तो भी उनको पता चल जाता है कि हम लोग सच में महिलाओं के साथ काम करते हैं, रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, जहाँ पे कोई और नहीं जाता है, वहां जाके हम स्किल ट्रेनिंग देते हैं और इनको एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो एनएसडीसी ने भी देख के हमको कंसेशनल रेट पे लोन दिया है 6.5 करोड़ 6% पे, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमको रिकग्निशन करके कि हमारी जो काम है वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है और अदर डेवलपिंग कंट्रीज में भी इस काम को प्रोत्साहन मिलना है बोल के हमको जर्मन गवर्नमेंट के साथ मिलके उन्होंने हमको मालावी भेजा, केनिया भेजा, अलग अलग कंट्रीज, अफगानिस्तान भी भेजा, जहाँ पे हमने काम किया है सिमिलर वर्क, इसको आगे लेके जाके। और सिमिलरली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने भी हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ कोलैबोरेट किया है और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने भी काम किया है हमारे साथ। तो मैं बोल रहा हूँ कि कोलैबोरेशन का मौका तो मौका ही मौका है, अगर आप अच्छा काम करें, आपका पर्पस नेक है। और जैसे बोल रहे हैं कि कभी मैंने ये इनका पढ़ा था कि आप कि दीपक चोपड़ा का पढ़ा था मैंने बुक, उन्होंने बोला है कि अगर आप नेक काम पे, जो काम दुनिया को यूजफुल रहता है उस काम पे अगर आप ओरिएंटेड रहोगे और सिर्फ अपने आप की सेल्फ की ही इस पे नहीं काम करोगे, बस साथ साथ में इफ यू आर वरीड अबाउट द प्लैनेट एंड द पीपल, देन द एंटायर वर्ल्ड विल वर्क फॉर यू, और वो कोलैबोरेट करने के लिए रेडी रहते हैं। बट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोलैबोरेशन तो मिलने के लिए बहुत सारे हैं, बट हर कोई यही ढूंढ रहा है कि भाई कौन सा जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो आप अपना पर्पस ठीक रखना है और जेन्युइन काम करो, तो ऑटोमेटिकली कोलैबोरेशन के लिए तो लिमिट ही नहीं है। आज के तारीख पे मेरे ख्याल से मैं एक रीसेंट सर्वे था जिसमें ये पता चला कि हम लोग इंडिया के अभी टॉप 200 या 250 सोशल एंटरप्राइजेस में है, 200 एंटरप्राइजेस में है, और हो सकता है कि अगले 2-3 साल में हम लोग टॉप 50 में भी पहुंच सकते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कोलैबोरेटर्स, नंबर ऑफ फंड्स हम लोग जो गैदर कर पा रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम मल्टीपल पैरामीटर्स होंगे, बेसिस के बेसिस पे हमको टॉप 200 में हमको गिना जा रहा है। This is remarkable, बहुत ही Yes, बढ़िया। I think it is always like this. If your purpose is clear and if you are doing well. जैसे आजकल क्रिकेट का बहुत शौक होता है सब लोगों को, बच्चों के लिए, एंड वहां से समझाना बहुत आसान है। अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक रहता है तो विराट कोहली इतना बड़ा ब्रांड है और इतना बड़ा ये है, परफॉर्मेंस ठीक रहता है तो दुनिया चाहे आप 35 इयर्स हो जाए और बोले कि 35-37 इयर्स है, ऑलमोस्ट 40 साल को होने लगे, फिर भी उनका प्लेस जो है इंडिया टीम में रहता ही रहता है। MS धोनी का भी ऐसे ही था। तो ऐसा है कि अगर आपका खुद का पर्पस, परफॉर्मेंस और जेन्युइनिटी रहता है तो लोग आएंगे, कोलैबोरेट करने के लिए कोई मौका ही मौका है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई हैं। कुछ चीज़ें मेरे लिए भी नहीं थी, इन स्पाइट ऑफ डूइंग अ लिटिल रिसर्च ऑन यू, जो मैंने किया कुछ समय पहले। जैसे टॉप 200 ऑर्गेनाइजेशन, सोशल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रेट अचीवमेंट। वी हैव दर्पण पोर्टल पे कितने NGOs लिस्टेड हैं, ह्यूज नंबर, मिलियंस हैं, secondly, if I talk about social incubators, we have Nudge, we have Impact Orbit, so many, and अगर हम उनके साथ we are amongst them, then perhaps we have done a great level of job until now. So basically, even in incubators, as I said, there are 700 incubators, और 2021 में जब हमको मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने अवार्ड दिया, we were certified as the best incubator in the country. Wow. और उसके लिए भी एक कैश अवार्ड भी मिला था हमको, and again these are among the 700 enterprises we were considered to be number 1. तो आज के तारीख में गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 इंक्यूबेटर्स को बेस्ट इंक्यूबेटर अवार्ड्स दिए हैं, क्या तो उसमें से एक हम लोग हैं। And वो 4 और कौन है, if I may know? I don't know all of them, but there is something called as T-Hub that is also in Hyderabad. गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है और तेलंगाना हब है, उनको मिला है। बाकी 3 तो मेरे को मालूम नहीं है, बट बेसिकली सिर्फ 4-5 साल हुए हैं गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस दिस स्टार्टअप अवार्ड्स एंड इंक्यूबेटर अवार्ड्स,
तो ये बेस्ट इंक्यूबेटर इन द कंट्री का अवार्ड हमको 2021 में मिला था। ऑनरेबल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने दिया था हमको वो अवार्ड। And I'm so glad that I'm talking to number one. नहीं, मैं बार एक ही सवाल पूछता हूँ कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, there is a long way to go. We have just worked with 70,000 women और जिनको मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि उनको एक स्टेबल इनकम और एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिला पाए हमारी काम के कारण। हम 1 मिलियन, एज ए सेड 1 मिलियन वुमेन हमारे टारगेट है, बहुत लंबा है। अभी तो हमने 7% भी हमारे टारगेट अचीव नहीं किए। उसमें आपके सामने एक खड़ी है, बैठी है, आपसे बात कर रही है। yes, obviously. No, I mean seriously, I'm very very impressed और I think इस बात को हमें और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है आज की डेट में, अगर वो अपनी अच्छी बातें लोगों तक नहीं पहुंचाएंगी तो लोग कैसे आएंगे, उन तक कैसे पहुंचेंगे। सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर थिंग जो आपकी बातों बातों में आपने कहा कि रास्ता बहुत लंबा है, मैं जानना चाहती हूँ कि वो रास्ता कहाँ जाता है, क्या माइलस्टोन्स है और मंजिल क्या है। तो बड़े स्पेसिफिक टर्म्स में मुझे बताइएगा, व्हाट आर द माइलस्टोन्स दैट यू आर लुकिंग एट, एंड वो मंजिल आप इस लाइफ टाइम में, आप, मुझे लगता है कि जितना बड़ा पर्पस है ना, एक लाइफ टाइम तो बहुत कम है, बहुत छोटी है। और हम वैसे भी हिंदुज्म जो इंडिया में पैदा हुए हैं, हम एक लाइफ टाइम में तो बिलीव ही नहीं करते। कई जन्मों का काम करना है बाकी, और अच्छे लोगों को मेरी माँ मेरे को बोलती है, माय मदर इज ऑलवेज सेइंग दैट इट सीम्स दैट यू हैव स्टार्टेड वर्किंग फॉर वुमेन, पिछले जन्म में आई थिंक यू हैव सम डेट, यू ओ समथिंग टू द वुमेन, दैट्स व्हाई यू आर वर्किंग सो मच फॉर द वुमेन, बोलती है मेरे को। तो मैं बोला कि हो सकता है कि किसी पिछले जन्म ने किसी में कोई महिला ने मेरे को बचाया होगा और कुछ किया होगा, तो इस बार मैं इस जन्म में उसको झुका रहा हूँ। बिल्कुल, आई कॉपी यू। मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे ये बात कही, माय सासू माँ हैज टोल्ड मी कि कोई ऋणानुबंध है तुम्हारा पुराना, ऋण चुका रहे हो। करेक्ट। वो तो होता ही है। आई मीन आई कंप्लीटली एग्री, बट स्टिल एज अ लीडर, एज अ सीईओ ऑफ एक्सेस लाइवलीहुड, what are your milestones you're looking at, and what kind of people do you want to be in that journey with you, and वो मंजिल कहाँ है? So I want very specific answers, Dr. Saab, on this. So basically, Dr. Kurian बोलते थे, जो सबको मालूम है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, एंड he was also the chairperson of Institute of Rural Management. तो वही बोलते थे कि when you serve communities, just because वो poor है, उनको poorly नहीं सर्विस करना चाहिए। बहुत सुंदर। पुअर डिजर्व द बेस्ट इन क्लास सर्विस। तो मैं उस चीज को काफी बार ध्यान रखता हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई नरेटेड दिस वाज दैट आई वांट टू से दैट टेक्नोलॉजिकली हम लोग जो सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं महिलाओं के लिए आज के तारीख पे, दे हैव टू बी कंप्लीटली डिजिटली एनेबल्ड। दुनिया बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है डिजिटली। सो फॉर एग्जांपल, हम माइक्रो इंक्यूबेशंस कर रहे हैं कि एक सिडबी के साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग 104 डिस्ट्रिक्ट्स में एवरी ईयर तकरीबन 5,000 से 6,000 महिलाओं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हु आर फ्रॉम रूरल एरियाज एंड हु प्रोबेबली आर 10th फेल और 12th फेल, उनके साथ हम काम करते हैं और उनको एंटरप्राइज बनाने के लिए 50,000 से लेके 10 लाख का इन्वेस्टमेंट के साथ वो एक एंटरप्राइज चालू कर सकते हैं। उनके साथ हम लोग काम करते हैं थ्रू 104 डिस्ट्रिक्ट्स। नाउ अगर आप ट्रेडिशनल वे में इसको देखेंगे तो आप अपना एक सेंटर खोलेंगे, वहाँ पे एक महिला रहेगी या फिर इंक्यूबेशन सेंटर का इंचार्ज रहता है, फिजिकली जाके मिलता है और सर्विस कर सकता है। बट हमारा उद्देश्य ये नहीं है। वी वांट टू डू इट थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, एंड टू एंड, फ्रॉम एनरोलमेंट, मोबिलाइजेशन से लेके उसको एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम होने के बाद और उसका व्हाट वी कॉल एज बिजनेस प्लान या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनती है, बैंक लोगों के साथ कन्वर्जेंस करना, फिर उसके बाद मार्केटिंग सपोर्ट मिलना, ऑल ऑफ दैट हैज टू हैपन एंड टू एंड थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। उस कोशिश पे है। सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट द फर्स्ट सच काइंड ऑफ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन रीच आउट टू सेमी लिटरेट वुमेन एंड हेल्प देम टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। ये अर्बन वुमेन के लिए भी है,
बट लेकिन दे हैव टू बी सेमी लिटरेट वुमेन, नॉट दोज हु आर वेल एजुकेटेड, ग्रेजुएटेड, एंड उन सब के लिए तो कुछ अलग अलग सपोर्ट मैकेनिज्म है, बट दीज आर सेमी लिटरेट वुमेन whom do. So whenever we do a program, whether, and we have another program where we work with weavers, उसमें भी मैं बहुत प्राउडली बता सकता हूँ कि जब ये सप्लाई चेन के अंदर काम करते हैं, एक वीवर अपना काम बुनाई करने के लिए, एक कपड़ा बुनने के लिए, दे हैव टू डील विथ एटलीस्ट 10 to different 12 एजेंसीज. कौन है ये लोग? एक होता है यार्न सप्लायर, कोई डाइंग करता है, कोई और इसका आयनिंग करता है, कोई उसका वॉशिंग करते हैं, कोई उसका वैल्यू एडिशन करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, कोई टेलर होता है जो गारमेंट बनाता है. इन सब के साथ इंटरेक्ट करने से ही वीवर अपना बुनाई जो है, कपड़ा बनाने का जो काम है वो कर सकता है, फुलफिल कर सकता है. बट सो एंड दिस इज वेरी कम्बरसम. अब वर्ल्ड में ये ऐसा है कि आप एक सिटी में रहते हो, जैसे मैं हैदराबाद में रहता हूँ, तो स्विगी में आप 2 मिनट में ऑर्डर कर सकते हो, या फिर जोमेटो में ऑर्डर कर सकते हो. 2 मिनट में आपको खाना चाहिए तो पका हुआ खाना आपके घर में डिलीवर होता है. बट एक बुनकर जो स्किलफुल आदमी है, इतना बड़ा स्किल है, ट्रेडिशनल स्किल है, दिस इज एज ओल्ड प्रैक्टिस, उसको अगर अपना काम करना है तो उसको 10-15 लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है और हर जगह पे घूमना पड़ता है. तो उनके लिए हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे उनके घर में सब कुछ उपलब्ध होता है, हर सर्विस, और उसको पूरी तरह से ट्रेसेबल कर सकते हैं. और जब ये कपड़ा जाता है और कस्टमर के पास जाता है, वो कस्टमर पूरा देख सकता है कि कौन सा बुनकर कब इसको बुनाया है और क्या है, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ, ट्रेसेबिलिटी के साथ. तो ऐसे एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया जो आई डोंट थिंक एनीबॉडी इन द कंट्री हैव मेड. You have a tracker. एंड उसको ई कॉमर्स के साथ कनेक्ट करके उसको डायरेक्टली बुनकर जो है वो डायरेक्टली अपना कंज्यूमर को बेच सकता है, क्या बात है, विदाउट एनी इंटरमीडिएट. किस नाम से है सर? ये जो वेबसाइट है वो creo.com है. ओ यस, ई कॉमर्स साइट. जी 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 जी, मैंने देखा आपके प्रोफाइल पे. creo.com. तो जब एंड द थर्ड थिंग, फार्मर्स के लिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कर रहे हैं, और फूड सेफ्टी इज अ बिग इशू. Again, we are working on food systems, और वहां पे भी पूरा complete traceability right from the beginning to the end, customer end तक, और उसको e-commerce इंटीग्रेट करना. So कहने का मतलब यह है कि हम टेक्नोलॉजी में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, पूरा मॉडर्न टूल्स यूज करना चाहते हैं, बट वी वांट टू सर्विस. ऐसे अगर हम लोग 5 भी इनोवेशंस कर लें, अब नंबर चाहते थे इसलिए मैं बोल रहा हूँ नंबर, इवन इफ यू आर एबल टू डू 5 such kind of innovations in my lifetime, and then because of those 5 innovations we are able to tackle with 1 million women, और इन 1 million women को अगर ट्रिपलिंग या क्वाड्रपलिंग ऑफ द इनकम हो सकता है, जो 60,000 महिलाएं हमने पहले बताया, 60,000 या 17,000 महिलाएं, उनको मैं क्लियरली एस्टेब्लिश कर सकता हूं कि उनका इनकम जो है 4 गुना बढ़ा है हमारे इंटरवेंशन के कारण. तो वैसे इन 1 मिलियन वुमेन को हम लोग ट्रेसेबिलिटी के साथ ये एस्टेब्लिश कर सकते कि वो इनकम उनका जो है 3 times 4 times ग्रो हुआ. तो मेरे ख्याल से मेरा एटलीस्ट इस लाइफ का पर्पस, मेरे ख्याल से मैं अच्छी तरह से सर्विस कर चुका हूँ. ऐसा मैं आराम से हैप्पीली आई कैन माय करियर एंड वर्क. Very precise. I am loving your answer. At least 5 innovation, और at least कितने number of women changing. डायरेक्टली इम्पैक्ट होना चाहिए, उनका इनकम 3 times या 4 times ग्रो होना चाहिए. So nice, so nice, wonderfully taken. And we are moving towards the end of the this talk show, and I still have 2 questions. तो मैं एक चीज यहाँ पे वार्निंग करना चाहूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत हम मेरी कहानी बता रहा हूँ और इसके कारण उनको लगेगा कि भाई हम ये फेलोशिप प्रोग्राम इज ओनली फॉर दोज हु वांट टू वर्क विद वुमेन, या फिर रूरल वुमेन, या जो हैंडलूम्स में काम करना चाहता है, या फिर दे वांट टू बी इन एग्रीकल्चर. ऐसा कुछ नहीं है. दिस फेलोशिप प्रोग्राम इज ओपन टू एनीबडी, दोज हु वांट टू वर्क इन एजुकेशन सेक्टर, दोज हु वांट टू वर्क इन sanitation sector, those who want to work in let's say art and culture, those who want to work in any sector, ecotourism, those who want to work in solar technology, those who want to do in mobility, green vehicles. कोई भी सेक्टर में आप जा सकते हो, हर सेक्टर में रेस्पॉन्सिबल बिजनेस रहती है, एंड वी वांट टू सर्विस ऑल ऑफ देम. ये अलग बात है कि हमने चुना है कि हम महिलाओं के साथ काम करेंगे और उनके ऊपर इम्पैक्ट करेंगे. दैट्स अ डिफरेंस. सो प्लीज डिफरेंशिएट दीज टू.
वी आर ओपन टू हेल्पिंग ऑल रेस्पॉन्सिबल एंटरप्राइजेस। जितना ज़्यादा ऐसे एंटरप्राइजेस रहेंगे उतना ज़्यादा इस दुनिया को हम बेहतर बना सकते हैं और अगले जनरेशन को खुश हालत पे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जितना ज्यादा इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर होगा, ईदर ऑफ द जेंडर, अगर मेल रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस और एंटरप्राइज क्रिएट करेंगे तो और विमेन को ओरिएंट वैसे ही कर पाएंगे, सपोर्ट वैसे ही कर पाएंगे। They will help these women to go ahead in their life in various phases. That is very important. और सर अब आप मुझे ये बताइए कि अगर जिन लोगों को ये रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइजेस खोलनी है या इन फेलोशिप का हिस्सा बनना है जो आपकी संस्था दे रही है, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, मैंने काफी डिटेल में इसकी स्टडी की, तो वो क्या कर सकते हैं? दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज वेरी रिलेटेड टू इट, कि आप ऐसे यूथ को जो इस सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस में रिस्पॉन्सिबल पर्पस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? तो मैसेज बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली मैंने पहले भी बोल दिया कि दुनिया में हम क्या चाहते हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप इफ़ यू आर ओनली वरीड अबाउट योर ओन सबसिस्टेंस, मैं जीऊँ, मेरे पास 10 कार रहना चाहिए, एंड इफ दैट इज द ओनली ओरिएंटेशन, देन आप रेस्पॉन्सिबल बिजनेस में नहीं काम कर सकते। इफ योर ओरिएंटेशन इज यस आई नीड अ कंफर्टेबल लाइफ, मेरे को एक गाड़ी चाहिए, मेरे को घर भी चाहिए, मेरे बच्चे भी अच्छे एजुकेशन करना चाहिए, साथ में अगर मैं दूसरों को भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और दुनिया में कुछ पेड़ पौधे भी उगने देता हूँ, कुछ अभी आजकल अर्बन सिटीज में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग इंटॉलरेंट है डॉग से, कैट से, कि वी आर नॉट टॉलरेंट टू देम, तो कुछ भी नहीं देख सकते हम, एक गाय भैंस को भी नहीं देखते थे। और ये मीडिया भी, वेस्टर्न मीडिया भी इसका हाइप करता है कि इंडिया के रोड्स में गाय भैंस घूमते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा है कि भाई हम लोग भी जी रहे हैं और वो भी जी रहे हैं। We are inclusive in nature by the nature. How we are very inclusive in our approach. We have to be like that. वैसे ही रहना है कि हम भी जिए और दूसरों को भी जीना चाहिए, और पेड़ पौधे भी रहना चाहिए और पशु जानवर भी अपना जीवन चलाना चाहिए। तो ऐसे अगर आप जीवन शैली अपनाना चाहते हो, और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे जीवन शैली अपना के कहता हूँ। आई गो बैक, मेरे अंदर भी यही एक इंटेंशन था और उसी इंटेंशन के हिसाब से मैंने एक पाथवे मैंने चुना है। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं, इफ दे आर क्लियर व्हाट दे वांट, तो यू आर वेलकम टू जॉइन अस। सो पहले मैं यही बोलूंगा कि आप अपने आप के अंदर जाके प्लीज गेट इनटू योरसेल्फ एंड आस्क एन ऑनेस्ट क्वेश्चन, मेरे को क्या चाहिए। इफ यू आर ओनली मैड अबाउट मनी एंड मेकिंग रोल अबाउट दिस वन, I honestly say that then you will get disappointed here. But if you are saying that, okay, I want a decent life, but at the same time I want to contribute something to the society and the planet, then please welcome. This is the place for you to come. And there are hundreds and thousands of opportunities जितने आप imagine भी नहीं कर सकते। IIT जितना competition भी नहीं है, क्योंकि लोग इसको चुनते नहीं है और ढूंढते नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। Right? So competition भी नहीं है, stress नहीं है, और दूसरों को मदद भी कर सकते हो, अपना लाइफ भी आराम से निकाल सकते हो। सेटिस्फैक्शन, अच्छा काम करने से जो रात में नींद आती है उससे खूबसूरत कुछ और कुछ नहीं होता है। आज भी मेरा 20-25 साल हो गया है, मेरे को कभी नींद के लिए कभी तकलीफ नहीं हुआ है। बिस्तर में लेटता हूँ, अच्छी तरह से नींद आता है और कभी डिस्टर्ब उठता भी नहीं हूँ लाइफ में। सो इट्स ऑल पॉसिबल टू हैव दिस काइंड ऑफ हैप्पी लाइफ एंड डू कंट्रीब्यूट, एंड इफ दैट इज योर पर्पस, then there are thousands of opportunities in this sector, thousands of opportunities, limitless opportunities, जो जितना, and the opportunities also don't have that much of competition, because honest काम करने वाले बहुत कम मिलते हैं दुनिया में। बिल्कुल। आपने एक बहुत अच्छी बात अपनी इसमें कही, और वो मेरे को उस क्वेश्चन पे वापस ले जा रही है कि आपने कहा कि वो लोग जो इस तरह की डिसेंट लाइफस्टाइल चाहते हैं और इस तरह का सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। आप तक कैसे पहुंचे, आरआरई को कैसे ज्वाइन करें, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे ज्वाइन करें, तो स्वागत कैसे होगा? तो हम लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम में भी एक्टिव हैं,
एक्सेस लाइवलीहुड की हैंडल के थ्रू, और वी आर ऑल्सो एक्टिव थ्रू आवर यूट्यूब चैनल, and we are also active through our website. There is a special website for RRE. Anybody can look into that website, and वहीं पे आप application, online application भी डाल सकते हैं. And then कुछ जगह पे हमने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जैसे डेविन प्रो है, उनके साथ, आपके साथ भी हमने टाई अप किया हुआ है, तो आपके थ्रू भी वो लोग जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं. एंड they can all multiple ways they can reach out. हमने कुछ मोबाइल नंबर्स भी दिए हैं वेबसाइट में हर जगह पे, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं. गूगल एड्स भी दे रहे हैं, तो देयर इज एनफ वे दैट वी आर ट्राइंग टू डू दैट कि हम विजिबल रहें और लोगों को पहुंच सके ये सब चीजों में. First of all, I am such a proud collaborator with Yes. Access Life. We really thank that you are also part of this journey, and we hope that we are able to together reach to maximum number of graduates. Yes. Because I feel that there are this kind of graduates are there. There are enough graduates who have this in mind, saying that अरे मैं अपना लाइफ भी जीना है, मेरे को डिसिप्लिन है, दूसरों को भी मदद करना है. There are enough such kind of individuals in the world. Not everybody is mad behind only money. जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली. और मुझे ऐसे यंगस्टर्स से, एज अ एल्डर पर्सन, मेरे लिए भी वो इस, चूंकि हम भी इसी सोशल सेक्टर को बिलोंग करते हैं, तो मेरा जो मैसेज है मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ वो ये है कि जिंदगी में, जैसे सिंगापुर में एक लॉ है कि भाई आपको 2 साल आर्मी को सर्व करना है, नेशनल सर्विस करनी, दे कॉल इट एनएस, नेशनल सर्विस. इसी तरह जिंदगी के आपको मिनिमम 2 से 5 साल किसी एक पर्टिकुलर कॉज से जुड़ के कंट्रीब्यूट करना चाहिए. तो और मैं बोलता हूँ कि वो जस्ट बिकॉज इट्स ए कंपल्शन या गवर्नमेंट बोल रहा है उसलिए नहीं करना चाहिए. इसलिए करिए, आप इसलिए करिए क्योंकि आपका हार्ट भी बहुत सेंसिटिव हो जाता है द मोमेंट यू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ फील्ड. आप, गांधी जी का वो एक कहावत है, बोलते हैं कि आप कभी निर्णय लेने के लिए संकोच कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि मेरे निर्णय से जो सबसे पुअर आदमी है आपने लाइफ में जो देखा है, उनके बारे में सोच के अगर आप निर्णय लेंगे कि भाई उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा आसान हो सकता है. तो वो एक डिसीजन मेकिंग टूल उन्होंने दिया है. तो वैसे ही हम बोलते हैं कि जब आप अपने से लेस प्रिविलेज लोगों के साथ काम करते हैं, हो सकता है कि वो बूढ़े लोग हैं जिनको कोई मदद करने वाला नहीं है और घर में कोई नहीं है, सब उनके बच्चे जो है बाहर यूएस में सेटल हो गए हैं या कहीं पे चले गए हैं, तो उनको मदद करने के लिए कोई नहीं है, तो आप मदद कर रहे हो, तो उससे जो सुकून मिलता है, उससे जो आशीर्वाद मिलता है, वो अनगिनत है. हम लोग उसके बारे में नहीं सोच सकते, और आपका जो दिल जो है वो बहुत ही हल्का हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको. बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू. तो अगर लाइफ टाइम में अगर अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अपने आप को इसी हिसाब से, चलो अपने आप की पर्सनल डेवलपमेंट होगा, सोसाइटल डेवलपमेंट तो होएगा ही होएगा बाय डिफॉल्ट. इसी हिसाब से अगर आप जिंदगी के 2 साल आप सोशल डेवलपमेंट सेक्टर को अगर आप देते हैं, इवन ऑन प्रो बोनो बेसिस और पार्ट टाइम बेसिस पे, आप फुल टाइम कोई जॉब कर रहे, डजंट मैटर, आप अपनी जिंदगी के 2 से 5 साल आप 2 घंटा रोज दे देते हैं, 1 घंटा रोज दे देते हैं, हफ्ते में 5 घंटा दे देते हैं, तो उससे नेशन, एज अ नेशन, किस तरीके से आप नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. दूसरा, आप पर्सनल डेवलपमेंट पे किस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है. और अगर थर्ड लेवल की बात करूं, जो यूजुअली लोग नहीं समझना चाहते, स्पिरिचुअल लेवल पे जो एलिवेशन होता है, वो तो खैर रिमार्केबल है, जिसका कोई मेजरिंग टेप नहीं है, लेकिन आपको खुद जिंदगी में देखने महसूस होने लगता है कि कैसी चीजें अलाइन हो रही हैं आपके लिए, हाउ कॉस्मोस इज कॉन्स्पायरिंग. With this thought, कृष्ण जी, I am so very grateful कि आप जैसे बेहद उम्दा लोगों से हम लोग एसोसिएट कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से जो भी छोटा बड़ा कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं, ये हमारा अहोभाग्य है. और I would request the youth of this country to think about these programs. Give your 1 year, 2 years, 5 years, whatever timeline you have set for yourself for personal and societal development. आप इसको दीजिए. Try out to reach out to these guys and
get enrolled for RRE or for social entrepreneurship, micro enterprise. This doing so many things altogether. So आसान तरीका ये है कि किसी के साथ जुड़ के करिए ताकि इम्पैक्ट सिनर्जाइज हो सके. अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसे लोगों से जुड़ के करते हैं तो आप फॉर्मली प्रोफेशनली करते हैं, उससे इम्पैक्ट सिनर्जी, जो सिनर्जी होती है उससे इम्पैक्ट कहीं बढ़ जाता है. तो आपको यही सजेशन है, आपसे यही गुजारिश है. और बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. धन्यवाद सब लोगों को इतना समय निकालने का और हमारी बात सुनने के लिए. तो खुश रहेंगे कि अगर हमारे साथ बहुत सारे यंगस्टर्स जुड़े और इस मूवमेंट को और आगे लेके जा सके. बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग for coming to our podcast. Thank you so much. It was such a pleasure talking to you. Thank you. Thank You can you, stop. madam. सिविल सर्विस में जाना चाहिए या डॉक्टर बनना